स्टूडेंट्स आई एम हनीश बंसल आई एम योर अकाउंट्स ਲੈਕਚਰਰ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਡਸ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਾ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CGST SGST ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ IGST ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਫੋਰਮੈਟ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਇਨਪੁਟ CGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ SGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਸੋਹਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੈਸ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ IGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ 12% ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, 10,000 ਦਾ 12% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? 1200, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ CGST 12% ਹੈ ਜਾਂ 6% ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਅੱਡ 1200 ਇੱਥੇ, 1200 ਇੱਥੇ, 10,000 ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ? 2400 ਰੁਪਇਆ ਉਰੇ 10,000 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਧਾਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਟੂ ਇਨਪੁਟ CGST ਅਤੇ ਟੂ ਇਨਪੁਟ SGST, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੈਸ਼, ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇਨਪੁਟ CGST ਟੂ ਇਨਪੁਟ SGST। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਾਤਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨਸ ਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਸਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਡਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਡਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਗੁਡਸ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖਣਾ, ਇਨਪੁਟ CGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ SGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ IGST ਡੈਬਿਟ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। अगर इंटरेस्ट रेट है तो की एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, जे अगर कैश च है तो कैश, ठीक है, जो बैंक च है तो बैंक लिखना, ठीक है। तो इत्थे की पऊगी कमीशन अकाउंट डेबिट, तो लिखना है इनपुट IGST डेबिट टू, कैश है तो कैश लिखना है, बैंक है तो बैंक लिखना है। कई स्टूडेंट तो बस इस वीडियो में देख रहे हैं, देख के समझी जा रहे हैं,
पर ये चीज़ एवें नहीं हो सकती, थोड़ा दिमाग इन्ना भी सक्षम नहीं हैगा कि सारा कुछ देख के समझेगा। तो इन्होंने चीज़ों को कॉपी तो उतार लो तो वधिया रह जाओगे। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਲਰੀ, ਰੈਂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਇਨਪੁਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਟਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर कोई भी एसट आप खरीद रहे हाँ ਜਾਂ कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो उत्थे इनपुट वर्ड यूज़ करना है। जे अगर इंटर है तो CGST SGST, जे इंटर है तो अगर अपन कोई भी एक्सपेंस का हुण अपन इनकम हो रही है, इनकम या गेन हो रही है तो उत्थे आउटपुट यूज़ करना है, आउटपुट। क्लीयर है गल? तो बस आह याद रखना है। हुण तुहानूं क्लीयर हो गया होना। मैं तुहानूं इहदे विच दस दिना एक एंट्री पा के दस दिता, जिवें कोई एडवरटाइजमेंट की, रेंट पे किया, सैलरी पे की, ठीक है, फ्रेट पे किया, कोई किराया दिता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा दिता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई खर्चा दिता, ये सारे खर्चे ने गे। तो ये एंट्री नूं किवें पाना है? इंट्रा च ते इंटर च। तो जिन्ना भी उपर लिखा हुआ है एडवरटाइजमेंट, मैं पहले अखर लिख रहा, एडवरटाइजमेंट, रेंट, सैलरी, कोई भी जो भी एक दिता हुआ इन्हों चो कोई भी खर्चा तो वही लिखना है। सैलरी, फ्रेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी खर्चा दिता है ये सारे किया डेबिट। फिर इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू जो भी कैश ना दिता कैश, तो बैंक ना दिता बैंक। उधर भी आही सारे खर्चे, एडवरटाइजमेंट, रेंट, सैलरी, फ्रेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ भी कोई भी खर्चा हो जो पे किया तो इनपुट इत्थे की लिखना है सिर्फ IGST डेबिट टू कैश, बैंक, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सारे क्लीयर हो गया होना। मतलब कोई भी खर्चा आप को पे करते हैं तो इस तरीके नाल आप एंट्री पास करनी है। थोड़े सामने मैं तुहानूं कोई एग्जाम्पल दे के समझाना कि किस तरीके नाल GST दी एंट्रियां पानियां होंदियां नेगियां। एग्जाम्पल है जिहदे विच विद ते विदाउट दोनों मिक्स आप एंट्रियां नेगियां। एक क्वेश्चन दे रखा है, यह पेज नंबर तुसीं 8.58 पेज खोल लो तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है। तो आ जगह थोड़े कोल बुक हैगी है तो तुसीं खोल सकते हो पेज, तो तुहानूं उस क्वेश्चन के माध्यम राही तुहानूं मैं समझा दिना। ठीक है, तो जो थोनों मतलब बेस क्लीयर हो जाएगी चैप्टर च है की चीज़। क्लीयर है गल? हम देखो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो हुण ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इत्थे अपन देखो एंट्रियां दे रखियां ने सारियां, तो नीचे देखो की वर्ड लिखा हुआ है CGST SGST कहते 9% लगाना है इंटरेस्ट रेट पर। कहते पहला तो देखो ये बिजनेस कितों का है? यूपी का। अगर यूपी तो बाहर कोई चीज़ है तो वो की होगा? IGST लगेगा। अगर वो यूपी के अंदर ही अंदर कोई चीज़ बिक रही है, जे अगर कितने लिखा भी नहीं कि हाँ यूपी तो बाहर है कि अंदर है, तो भी आप स्टेट के अंदर ही मनांगे। अगर स्पैशल मैंशन किया गया कि यूपी तो बाहर है ये चीज़ तो उत्थे IGST लगाना। IGST का रेट है 18% लगाना है, तो CGST SGST का रेट है 9%। मतलब CGST का 9% अड्ड है, SGST का 9% अड्ड है, मतलब इन्होंने दोवां का अड्ड 9% है, यदा कल्ले का 18% है। समझ आ गई? पर इन्होंने क्या जो CGST SGST लगाना है वो सिर्फ सेल तो परचेज से लगाना है। किस ते लगाना है? सेल परचेज। हुण पूरे जिहड़ी क्वेश्चन है ये आपां ने सिर्फ जिथे गुड्स खरीदियां जा रही ने या जिथे गुड्स बेचियां जा रही ने
सिर्फ उसे ते ही CGST SGST लगाना है बस, और किसी ते भी नहीं लगाना। जे अगर रेंट रूंट पेड है किसी भी जगह ते नहीं, बाकी सिर्फ नॉर्मल एंट्रियां पानियां ने बस। सिर्फ जिथे क्या गया परचेज की है या सेल की है, सिर्फ उसे ते CGST SGST लगाना, वो भी ये देख के कि वो इंटर है कि इंटर है। क्लीयर है गल। ਹੁਣ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ 20 ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਡੇਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ, ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਜਰਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਰਨਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਬਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਬਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਡਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਕ ਆਇਆ, ਸਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। और क्या आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा उरे स्टूडेंट्स 30,000। ठीक है। 30,000 उरे आ जाएगा। तो अगे देखो 15,000 उरे आ जाएगा, 20,000 थे आ जाएगा 65,000। तो स्टूडेंट्स इतने लिख लेना नरेशन बीइंग द बिजनेस स्टार्टड विद जो भी है चीज़ा ने कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इन तीन चीज़ों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री पानी है अपने मार्च 2। मार्च 2 की एंट्री की लिखी हुई है पेड इन टू बैंक, बैंक के पे करता अपने। तो बैंक च पे करता, अपने को कैश आया कि गया, कैश अपने को गया तो की आया अपने को बैंक आया, बैंक च पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो कितना लिखना हो रहा 20,000 20,000। तो अपने नरेशन लिख देनी है बीइंग द कैश पेड इन टू बैंक। ठीक है। अगे देखो स्टूडेंट्स मार्च 3 कहते गुड्स खरीदिया अपने उधार, उधार गुड्स खरीदियाँ। ठीक है। तो अपने वो भी किस तो खरीदियाँ अपने मोहन एंड ब्रोस तो, ताकि एंट्री पाई गई परचेज अकाउंट डेबिट। ਹੁਣ देखो इतने क्या है कि गुड्स ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा जिथे परचेज करा हो सेल करा उत्थे आए CGST SGST लगो। इतने वर्ड लिखा है अपने उन्हें गुड्स खरीदे ने लखनऊ तो, जो लखनऊ तो यूपी के ही है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। किन्ने रुपए की गुड्स है, 7,000 रुपये की गुड्स है। ठीक है। 7,000 की गुड्स है तो 7,000 रुपया और लिखता। फिर उत्थे की लिखना ने इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जोड़े बंदे तो खरीदी अपने मोहन एंड ब्रोस। हम इतने CGST SGST कितना लगेगा, 9% किया गया है, 9% ਇਹਦਾ 9%। हम 7,000 का 9% कर लो, 7,000 का 9% करोगे तो 630 रुपये आ जाऊगा, 630 रुपये ਇਹਦਾ ही आ जाऊगा, 630 ਇਹਦਾ आ जाऊगा। फिर इन्होंने तिना का टोटल करके इत्थे लिख देना 8260 हो गया। आई होप सारा भी क्लीयर हो गया होना। अगे देखो फिर वही नरेशन पा देने बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट मार्च 4। पहला मार्च 3 की ही एक होर एंट्री है, कहते कार्टेज पे की। हुण कार्टेज अपने कोई खर्चा दिता परचेज करन ते, अब खर्चा हो गया, कोई भी खर्चा आप कार्टेज का खर्चा हो गया। कार्टेज कोई भी इनवार्ड है अकाउंट डेबिट टू कैश।
कार्टेज का खर्चा दिता अपने 100 रुपया 100 रुपया। अगे देखो स्टूडेंट्स उत्थे लिख देंगे बीइंग कार्टेज पेड। अगे देखो स्टूडेंट्स मार्च 4 कहते अपने गुड्स सेल करती तो क्रेडिट तुहानूं पता परचेज तो सेल थी CGST SGST पर यह सेल की कानपुर मतलब ये भी यूपी के अंदर ही है। तो हुण इत्थे की लिखना अपने कि तो उधार खरीदियाँ बेचियाँ ये उधार बेचियाँ ने गोयल एंड ब्रोस तो गोयल ब्रोस तो अपने बेचियाँ ने गोयल एंड ब्रोस अकाउंट डेबिट। ठीक है फिर इत्थे की लिखना टू सेल तो नाल लिख जो सेल करते हैं उदों वर्ड यूज़ करते हैं आउटवर्ड याद रखना सेल तो इनकम या प्रॉफिट तो कोई भी चीज़ हो तो उत्थे आउटवर्ड वर्ड लगेगा CGST SGST तो CGST आउटवर्ड SGST। ठीक है तो हुण इत्थे देखो कितना आ जाएगा अपने किन्ने दी खरीदियाँ ये 6000 रुपये का गुड्स खरीदियाँ ने 6000 का तुसी 9% कर दो तो 6000 का 9% करोगे तो 540 आ जाऊगा। फिर इन्होंने तिनों का टोटल करके उरे लिख देना टोटल अपने उस तो इन्ने लेने ने। तो इत्थे की लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रोस ऑन क्रेडिट बस क्रेडिट वर्ड लिख देना। समझ आ गया सारा स्टूडेंट्स। अगे देखो अगली एंट्री कह रहे हैं कहते कि कंप्यूटर खरीदया अपने वो भी चैक कराई। हम कंप्यूटर खरीदया जो थानू पता कोई चीज़ खरीदी है तो भी CGST SGST की गल होगी। तो कि डेट में खरीदया अपने 5 मार्च में इतने की लिखा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू बैंक लिख देंगे अपना किन्ने का कंप्यूटर खरीदा 20,000 का तो 20,000 का कर लो तुसी जो अपने ये जो इन्होंने इतने कितने भी नहीं लिखा क्वेश्चन च कि इतने कितों खरीदा गया आप मन लागे स्टेट के अंदर ही खरीदा तो आप CGST SGST लाया 20,000 का 9% करोगे 1800 आ जाऊगा 20,000 का 9% करो 1800 का तिना का टोटल करोगे तो इतने आ जाऊगा 23,600 लिख देंगे। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स। हम मैं अज एंट्रियां पाना सिखा रहा कि एंट्रियां किवें पैंदियां GST दियां। फिर उस तो बाद आप बहुत सारी प्रैक्टिस करांगे क्वेश्चनों की जो बहुत सारी प्रैक्टिस करांगे तो तुहानूं होर ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्वेश्चनों की। ठीक है इस क्वेश्चन के माध्यम राही मैं थोनों ये दस समझाता कि GST दी एंट्रियां पैंदी किवें आ। ठीक है मैं थोनों एक क्वेश्चन के जिवें 4-5 एग्जाम्पल लैके थोनों समझाता क्वेश्चन दी एंट्रियां चो। ठीक है तो स्टूडेंट्स एक गल होर थोनों मैं दस देना चाहना कि अपने जिहड़ा क्वेश्चन हुण अगे जिन्ने भी अपन दिते हुए होणगे वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जाओगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे ने कोई भी क्वेश्चन करोगे तो थोनों आराम नाल समझ आ जाना। ठीक है हुण अपने अज आह क्वेश्चन कर लिया। हेलो स्टूडेंट देखो ध्यान नाल एक गल होर मैं थोनों दसदा कि जिवें एक क्वेश्चन थोड़े सामने मैंने लिता है ਹੁਣ देखो ये क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ठीक है उन्होंने किया है कि CGST SGST 6% लगेगा IGST लगेगा 12%। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CGST SGST सेल परचेज ਤੇ लगेगा जिथे स्टार वर्ड लग्या होया स्टार उत्थे कहते जिथे भी स्टार वर्ड है उत्थे GST नहीं लगेगा। हुण क्वेश्चन के देखो आ क्वेश्चन है ये देखो स्टार कितने लग्या एक तो तीसरे पॉइंट पर लग्या एक 5वें पॉइंट पर लग्या। हुण आ 2 जगह पर स्टार लग्या इसका मतलब इन्ना जगह इस ते CGST SGST नहीं लग्या तो सिंपल एंट्रियां पैणगियां बाकी जिते स्टार नहीं लग्या वो तो CGST SGST लगाना है। देखो पहली एंट्री की है गुड्स परचेज की तो मतलब की हो गया उधार खरीदी तो फरीदाबाद है तो हुण पंजाब तो बिजनेस है तो मतलब की होया
12% लगेगा परचेज अकाउंट डेबिट, तो की लगेगा IGST अकाउंट डेबिट टू उधार है तो मोहन। तो किन्ने रुपये की जगह जो भी अमाउंट इतने लिखी हुई, मान लो अपने एक 10,000 रुपये की अमाउंट है तो 10,000 रुपये का उरे लिखता, तो 10 उरे मान लो 500 रुपये इतने मैं अमाउंट नहीं लिखिया, इतने आ जाऊगा लगा लो 1000 रुपया, इतने 800 रुपये ला लो, ठीक है। तो 1000 रुपये 10,000 रुपया 10,000 का 12% किया 1200 उरे आ जाऊगा, तो इतने आ जाऊ 11,200, ठीक है। आ थोड़ी एंट्री होगी, नरेशन तुम पा लियो। फिर रिटर्न करती अपने गुड्स मोहन नू, वो मोहन तो ही खरीदी सी, मोहन नू रिटर्न करती तो मोहन अकाउंट डेबिट, तो इत्थे इनपुट वर्ड यूज़ करना है, इनपुट IGST, तो इत्थे मोहन अकाउंट डेबिट, फिर इत्थे की लिखना है टू इनपुट IGST टू इन, तो फिर तुसी की लिखना है टू परचेज रिटर्न। तो किन्ने रुपये की वापस की है 500 रुपये की, तो 500 रुपये की एंट्री पा लाँगे। तो इत्थे बोर्ड लिखा 500 रुपये की, तो अपने गुड्स वापस की 500 लिख देंगे, तो नाल आप की लिख देंगे, ठीक है, IGST समेत। जेकर इत्थे लिखा हो विद इन IGST समेत आप वापस की है, जा सिर्फ 500 लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि 500 वापस की है, तो IGST आप इत्थे लगाना है, तो टोटल आप लिखा पहला उरे 500 लिखा, परचेज रिटर्न IGST का है 12%, तो 500 ते 12% करोगे, तो 500 ते 12% करोगे तो ये आ जाऊगा 60 रुपये आ जाऊगा, ठीक है। तो इतने 560 वाले लिख देंगे, क्लीयर है गल। अगे कहते रेंट पे किया अपने, तो इतने देखो स्टार लग्या हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंपल एंट्री पऊगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, किन्ने रुपये पऊगी इतने 1000 रुपया 1000 रुपये। नरेशन पानी हर क्वेश्चन जरूरी है। चौथी एंट्री देखो सोल्ड की अपने गुड्स 10, पर इतने कोई स्टार नहीं लग्या, ठीक है, इसका मतलब इतने CGST SGST लगूगा। तो इतने कैश नाल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इतने वर्ड यूज़ करांगे आप आउटपुट जेकर इतने कितने भी नहीं लिखा कि केड़े स्टेट तो है, तो इसका मतलब आप विद इन स्टेट मान लेंगे। इनपुट CGST आउटपुट CGST तो SGST लिख देंगे। तो सेल किन्ने दी की अपन 10,000 रुपये की, 10,000 रुपया और लिख के, तो किन्ने परसेंट लाया अपने 6%, तो 6% का लाला साहब लगाओगे तो 10,000 का 600 आ जाऊगा, तो यह आ जाऊगा 11,200, क्लीयर गल। तो अगे अगली एंट्री के सैलरी पे की है, तो भी स्टार लग्या हुआ है, तो सिंपल स्टार एंट्री पे जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो समझ आ गई। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। हुण मैं तुहानूं सारियां एग्जाम्पल समझातियां किस तरीके नाल पैंदियां ने एंट्रियां। याद रखना है CGST SGST दे विच जेकर आपां कोई खर्चा करदे हां, पे कर रहे हां जां आपां कोई चीज़ खरीद रहे हां, तो उत्थे इनपुट CGST SGST या IGST का यूज़ होएगा। जब आपां कोई चीज़ की कमाई हो रही है, जिवें कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कोई भी कमाई हो रही है, तो क्रेडिट दे विच होगा, पर उत्थे आउटपुट का यूज़ करना है, ठीक है। ये बेसिक कंसैप्ट सी तुहानूं मैं समझाते। अगले लैक्चर दे विच स्टूडेंट्स तुहानूं मतलब बहुत सारे क्वेश्चनां दी आपां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करांगे। तो अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, जय हिंद।